आप सबको जय मसीह. Yeah, so it has come now. I hope you can see and you can hear me also, because there is some problem, it seems. Okay, uh, so first of all, let us pray. Dear gracious, loving Heavenly Father, we come into Thy presence. We praise you and thank you, Lord, for today. We thank you for this beautiful evening. Thank you, dear Lord, you have given us this life. Thank you, dear Father, you have been so gracious and so loving and so kind unto us. You have protected us from all the problems and diseases and disasters. Dear Lord, you have kept us safe from everything and you have provided all our needs. Dear Father, take control of this message as I'm going to deliver it with the guidance of the Holy Spirit. Dear Heavenly Father, thank you for all those who will attend this message and bless them immensely. Dear Father, I pray for my dear Shabnamji and Anupam brother. Be with them, Lord. Bless them immensely and use them for thy service. For I ask all this in Jesus' precious name. Amen. So first of all, I want to welcome all of you, and I hope all of you are good and you are keeping good health and you are happy with your families. Everything is fine with your job and the family, etc. So let us sing a song first before I go into the message. जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है. हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है. वो मेरे गुनाह का है. जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है. हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है. वो मेरे गुनाह का है. इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको. मेरे ही गुनाह उसको. ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है. मैंने ही कराया है. जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है. हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है. इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है. और सच्चा खुदा वो है. वो प्यार का दरिया है. सच्चाई का रास्ता है. सच्चाई का रास्ता है. जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है. हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है. देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने. खुद मौत सही उसने. क्या खूब है कुर्बानी. क्या प्यार अनोखा है. क्या प्यार अनोखा है. जो
क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। वो क्यों जान दी? ताकि हम अपने पापों से मुक्ति पा जाएं, ताकि हम उसके लहू से धुल के और साफ होके हम उद्धार का रास्ता पा लें, हम स्वर्ग में जा सकें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। क्या हम उस बलिदान की वैल्यू को समझते हैं या नहीं? अगर हम समझते हैं तो हम यीशु मसीह को माने और सारी पापों से हम दूर रहें। तभी है उसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के मूल्य को जानते हैं। अब एक और गाना है जो कि यीशु मसीह के लहू के बारे में ही है, और उसमें इस तरह है कि देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। There is power in the blood of the Lamb. Who is the Lamb? Lamb is the Son of God, Jesus Christ. So we should remember that the blood of Jesus is very powerful. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you over evil victory sin? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since rains are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Praise the Lord, Rohini ji and Vinny, AJ, and I'm so glad you could come, and God may bless you, and immensely He may use you also for the extension of His kingdom. So let us go into the word now, and today's topic is what is sin and how to get freedom from sin.
So this is the topic today, and it's very interesting topic, and it is part of the Lent period, because you know well, we know well that why Jesus died, why Jesus went to the cross, why God sent His only Son to this world to die for our sin and to make His sacrifice so our sins may be gone and we may be free of sin. So this is the purpose of God for sending Jesus Christ into this world. Even though He was sinless, He had committed no sin, but still He became sin for us. He became curse for us. So we can be free from sin and curse. So let us see what the Word of God says about it. What is sin? First of all, we should know what is sin. Everybody knows the definition that sin is something which is wrong. We do something wrong, and sin is like we tell lies. That is a sin. So in the Bible, it is written, it is an immoral act against the divine law. It is an immoral act against the divine law. So जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है और परमेश्वर की जो आज्ञाएं दी हुई हैं उसके विरुद्ध जब हम जाते हैं तो वो पाप होता है. तो बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, और उन आज्ञाओं में से अगर एक भी आज्ञा को हम तोड़ते हैं तो वो पाप होता है. और in day-to-day life we are always committing sins, and we knowingly or unknowingly commit some sin. That is why we should ask for God's forgiveness every day, and whenever we realize that we have done something wrong, we should ask God to forgive us at once. And Jesus is so loving and kind to forgive us our sins. और हम देखते हैं कि sin क्या है in the Christianity. It is described as the deliberate and purposeful violation of the will of God. जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं और पर्पसली जाते हैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, तो वो जो है वो पाप होता है. हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. परमेश्वर हमको किसी भी रूप में बताते हैं, फिर भी हम उस बात को नहीं मानते हैं और हम पाप करते हैं, तो वो जो है वो जघन्य पाप होता है. और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाना ही पाप है, और परमेश्वर से घृणा करना भी पाप है. हम देखते हैं कि जो लोग पापी होते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा पाप में डूबे होते हैं, घिरे हुए होते हैं, वो परमेश्वर से घृणा भी करते हैं. वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने ये रूल क्यों बनाया, ये नियम क्यों बनाया, वो नियम क्यों बनाया, क्यों नहीं हमको फ्री छोड़ दिया कि हम जो मर्जी करें और वो जो है हमको वो चेक ना करे. इस तरह से बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर से घृणा करते हैं, स्पेशली जो सैतान के लोग हैं और जो इस दुनिया की अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं, और वो जो हर रोज़ गलत काम करते हैं, वो लोग जो हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, वो परमेश्वर से घृणा करते हैं. लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर की हर आज्ञा को मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं. और एक्चुअल सिन क्या होता है? एक्चुअल सिन is the ordinary sense of the word and consists of evil acts, whether of thoughts, word or deed. So sin ये नहीं कि हम केवल जो करते हैं वही सिन होता है. हम अपने मन में जो भी गलत सोचते हैं वो भी सिन होता है, और हम जिन बातों पर मनन करते हैं और वो गलत होती हैं तो वो भी सिन होता है. जैसे कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, और वो जो है गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे रिश्वत लेकर या लोगों से मांग कर या उनका पैसा वापस नहीं देकर. तो ये भी एक पाप होता है. और इस तरह से हम देखते हैं कि कई पाप हैं दुनिया में जो हमको पापों की ओर ले जाते हैं और परमेश्वर के क्रोध में हमें ले जाते हैं.
हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 ऐसे पाप हैं जिनको हम डेडली सिन कहते हैं। मतलब सिंस सो मैनी हैं, पाप कई तरह के होते हैं, लेकिन जो डेडली पाप हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि देयर आर 7 डेडली सिंस: प्राइड, एनवी, wrath, sloth, greed, and gluttony and the lust. So here we see 7 deadly sin. सबसे पहला sin क्या है? प्राइड, घमंड करना। जब हम अपने पर घमंड करते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप होता है। उसके बाद एनवी, जेलसी करना, किसी से जेलसी करना। अभी हमने पिछली बार जेलसी के ऊपर बोला था। तो जेलसी क्या है? जेलसी भी एक पाप है। और इसके अलावा गुस्सा, दूसरों पे गुस्सा करना और हमेशा गुस्से में रहना, ये भी पाप है। और स्लॉथ मतलब लेजीनेस, अगर हम टाइम से अपने काम नहीं करते हैं और लेजी हो जाते हैं, सोते रहते हैं हमेशा, और हर काम को हम निगलेक्ट करते हैं घर में, और अपनी पढ़ाई के या अपने जॉब के कामों को निगलेक्ट करते हैं, तो वो भी पाप होता है। और ग्रीड, किसी की चीज़ का लालच करना। अगर हमारी फ्रेंड के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे गहने हैं, तो हम लालच करते हैं कि काश कि ये हमारे पास भी होता। तो इस तरह से लालच करना भी वो क्या होता है? पाप होता है। ग्लटनी, बहुत ज़्यादा खाना खाना, बहुत ज़्यादा पेटू बनना भी पाप है। और ग्लटनी जो है, बहुत से लोग केवल उनका ध्यान केवल खाने के ऊपर होता है, वो परमेश्वर के बारे में तो सोचते ही नहीं, बस वो सोचते क्या पाएं और क्या खा लें हम। तो वो ग्लटनी भी एक पाप होता है। और सबसे लास्ट जो है वो लस्ट है। लास्ट सिन लस्ट है। लस्ट मीन्स व्यभिचार, किसी के बारे में हमारी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं वो इतनी बुरी होती हैं और जिससे कि परमेश्वर नाखुश होते हैं, और हम अपने अपने शरीर के साथ ही पाप करते हैं। और सबसे बड़ा पाप जो है अपने शरीर के साथ पाप करना होता है, क्योंकि हम उसमें हमारा शरीर ही जो है शामिल होता है। तो ये जो है लस्ट होता है, किसी को गलत नज़रों से देखना और किसी के साथ व्यभिचार करना। तो ये सारे जो 7 सिंस हैं ये डेडली सिंस होते हैं। और इन्हीं सब पापों के कारण यीशु मसीह दुनिया में आए, ताकि हम नरक में ना जाएं, क्योंकि नरक की आग बहुत ही भयावह है और उस आग में जलना एक बहुत ही नामुमकिन चीज़ है। लेकिन जो लोग पाप करते हैं उनको नरक में ही जगह मिलती है। और हम देखेंगे कि रोमन्स 5:14 में क्या लिखा हुआ है। रोमन्स 5:14 में, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध के समान, इसके पास कुछ और लिखा हुआ है, पाप नहीं किया। तो हम देखते हैं कि आदम से ही पाप शुरू हुआ, क्योंकि आदम को गॉड ने सबसे पहले बनाया दुनिया में, और उसने उसको मिट्टी से रचा, बड़े प्यार से रचा, और उसमें अपना श्वास फूका तो आदम के अंदर जान आ गई। फिर उसने उसके साथ रहने के लिए एक स्त्री को बनाया जिसका नाम हव्वा था। और परमेश्वर ने जो है आदम को कहा था कि तू इस वाटिका के सारे फलों को खा सकता है, बस एक जीवन और मृत्यु का जो पेड़ है उसके फल को मत खाना। और ये जो है आदम को अच्छी तरह परमेश्वर ने कहा था कि अगर जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो उस समय क्या होता है कि आदम जो है कहीं चला जाता है और हव्वा अकेली होती है वहाँ पर उस वाटिका में। उस समय शैतान एक सर्प के रूप में आता है उसके पास, और वो उससे कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुझसे ये कहा है ये फल मत खाना? तो वो कहती हाँ। तो फिर वो कहता है क्या परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे? तो हव्वा कहती हाँ। तो उसके बाद वो कहता है, शैतान उससे कहता है कि तुम नहीं मरोगे, तुम खाओ इस फल को, नहीं मरोगे। तो ये जो है टेम्पटेशन में पड़ जाती है हव्वा, और वो जो है फल को खा लेती है, और वही फल जो है वो अपने पति को भी देती है, और उसका पति भी आदम भी उस फल को खा लेता है। और इस तरह से सबसे पहली बार पाप दुनिया में आता है। पाप ये नहीं कि उन्होंने उस फल को खाया, बट मेन पाप ये था
कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा दी थी उस आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया, और जो सबसे बड़ा पाप उन्होंने यही किया। और उसके बाद वो एक दूसरे को देखने लगे कि वो नंगे हैं, उनके शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं है। और जब गॉड वाटिका में उनसे रोज़ मिलने आया करते थे, और गॉड ने उनको अपनी कंपनी के लिए बनाया था और वो उनसे रोज़ बातें करते थे, लेकिन जब उस दिन गॉड आए तो उन्होंने पुकारा आदम और ईव को, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पत्तों में अपने आप को लपेट के झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे, क्योंकि उनको शर्म आ रही थी कि वो नंगे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं। तो परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या तुमने वो फल खा लिया है जो मैंने तुम्हें मना किया था? तो वो कहते हैं हाँ। तो आदम कहता है कि इसने ईव ने मुझे दिया, मैंने खा लिया। फिर ईव से पूछा क्यों? तो ईव कहती है सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने वो फल खाया। तो इस तरह तीनों, देखिए वहाँ पर 3 लोग हैं, और एक तो है सर्प, एक है आदम और एक है ईव। वो तीनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और जो है परमेश्वर जबकि जानता है कि वो सबसे बड़ा पाप किसने किया, आदम ने किया है, क्योंकि परमेश्वर ने वो आज्ञा सिर्फ और सिर्फ आदम को दी थी। और इसके बाद क्या होता है कि आदम बिकेम ए सिनर, and God said that today onwards you will not live in this garden of Eden. You will not live, and you will go out of this garden. और उस बगीचे से, वाटिका से परमेश्वर ने उनको निकाल दिया, और उनको परमेश्वर ने अभिशाप भी दिया कि आदम, आज से तू अपने खून पसीने की कमाई से खाएगा, और तू बहुत मेहनत करेगा और खून पसीने की कमाई से खाएगा, और हव्वा, तू बड़े दर्द के साथ बच्चों को जनेगी। तो ये जो पाप का परिणाम हुआ कि परमेश्वर ने उनको ये श्राप दिया, और ये श्राप जो है आप जानते हैं कि अब तक चला आ रहा है। और उसी तरह से मनुष्य मेहनत करके जो है अपनी रोटी कमाता है, और एक जो स्त्री है वो बहुत पेन के साथ बच्चों को जन्म देती है। तो वो पेन इतना होता है जो कि कई हड्डियों के टूटने के बराबर होता है। अराउंड 57 हड्डियां जैसे टूट जाती, उसका दर्द, वो दर्द होता है बच्चे को पैदा करने का। तो इतना बड़ा श्राप इस हस्बैंड और वाइफ को मिला। Yes, Vinny ji, you have written, yes, they were blaming each other instead of accepting their own mistake. Yes, it is very important. They were not accepting their own mistake, but they were blaming each other. और यही तो हम अपने जीवन में भी करते हैं कि जब हम कोई पाप करते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, और हम ये नहीं कहते कि सॉरी, हमसे गलती हो गई। बहुत मुश्किल से, बहुत ह्यूमिलिटी उसके लिए चाहिए सॉरी बोलने के लिए। तो यही बात जो है एडम एंड ईव ने करी कि वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, और वो अपनी गलती को नहीं मान रहे थे। इसके बाद जेनेसिस 3:11 में लिखा है कि उसने कहा, किसने मुझे चिताया कि तू नंगा है, और जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या तूने उस फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया है, फॉरबिडन पेड़ के फल को खाया है। फिर हेजिकियल में अगर हम देखें, हेजिकियल 28 चैप्टर 13 में ये लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नाम की बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराज और हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब, नीलमणि, मरकद एंड लाल, सब तरह के मणि और सोने के पहरावे थे, और डक और बांसुरियां तुझी से बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन ये तैयार की गई थी। आदम का काम था वाटिका की रक्षा करना, परंतु वो नहीं कर सका, इसलिए शैतान ने क्या किया कि सर्प के रूप में आकर उसमें घुस गया।
तो ये सब चीज़ें परमेश्वर ने आदम के लिए पहले से ही बना दी थी, जो कि इतनी महंगी मड़ियाँ और मोती और हीरे जवाहरात होते हैं, वो सब परमेश्वर ने आदम के लिए बनाए थे। वो आदम को इतना प्यार करता था, वो आदम को अपना अपना पहलौठा बेटा मानता था, और आदम के लिए हर आराम की वस्तु उसने उस वाटिका में बनाई थी, और उसने उसको ये काम दिया था कि तू इस वाटिका की रक्षा करना, वाटिका की देखभाल करना। बट वो ऐसा कौन सा समय था जब आदम उसकी रक्षा नहीं कर पाया, और उसी समय सर्प जो है, शैतान सर्प के रूप में वहाँ वाटिका में अंदर आ गया और उसने हव्वा को बहका दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी उसने परमेश्वर की जो आज्ञा थी, उसके इंस्ट्रक्शन को बहुत हल्का लिया, और उसने वाटिका की देखभाल ना करके वो कहीं और चला गया। इसीलिए शैतान को मौका मिल गया। तो हम देखते हैं कि शैतान जो है वो बहुत चालाक है। जब वो देखता है कि कोई कमज़ोर है और जिसकी विचारधारा जो है वो बहुत कमज़ोर है, जो अपने आप में सशक्त नहीं है, अपने थॉट प्रोसेस में सशक्त नहीं है, उनको वो बहकाता है, और वो लोग जो है बहक भी जाते हैं। जैसे कि हव्वा बहक गई और उसने अपने पति को भी बहकाया। पर पाप जो है वो हव्वा पर नहीं, सीधे सीधे आदम पे आया, क्योंकि परमेश्वर ने वो आज्ञा सिर्फ और सिर्फ आदम को दी थी। लेकिन जब हव्वा उसको वो फल खाने को देती तो उसको मना कर देना था कि नहीं, परमेश्वर ने ये फल खाने से मना किया है तो मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन वो अपनी पत्नी की बातों में आके वो फल खा लेता है। तो सबसे बड़ा पाप किसने किया? आदम ने किया। अब पाप के क्या क्या परिणाम होते हैं? हमने देखा कि पाप जो है वो कई तरह से परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, और परमेश्वर पाप से घृणा करता है, और जो लोग पाप करते हैं जानबूझ के, वो परमेश्वर से घृणा करते हैं। ये हमने शुरू में देखा था। अब पाप के क्या क्या परिणाम होते हैं? एक तो ये होता है, पूरी मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई। जब पाप दुनिया में आया तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी खाई जो है परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में आ गई। और जबकि परमेश्वर और आदम और हव्वा रोज एक दूसरे से मिलते थे, अब उनका मिलना बंद हो गया और परमेश्वर उनसे दूर चला गया, और उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। दूसरा परिणाम यह है कि मृत्यु ने मनुष्य पर राज किया। अब क्या हुआ कि मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसलिए नहीं सृजा था कि वो एक दिन मर जाएंगे। उसने उनको हमेशा और हमेशा जीवित रखने के लिए चुना था कि वो कभी नहीं मरेंगे। लेकिन इस पाप के कारण क्या हुआ, मृत्यु उनके बीच में आ गई, और उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया, इसलिए मृत्यु उनके बीच में आ गई। और बाइबल हमें बताती है कि आदम 930 इयर्स जिंदा रहा, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वो पाप नहीं करता तो क्या है, वो कभी ना मरता। और इससे ज़्यादा आयु जो है नोहा की थी, 960 इयर्स। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है, पहले परमेश्वर सबको बहुत लंबी लंबी आयु देते थे, पर जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, जो मनुष्य की आयु जो है वो कम होती गई। और तीसरा परिणाम है, मनुष्य शाप के अधीन हो गया। जब पाप आ गया मनुष्य के जीवन में, तो परमेश्वर का श्राप भी उसके ऊपर आ गया। अभी हमने देखा कि उसने आदम को कहा कि तू अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार को खिलाएगा, और उसको हव्वा को कहा कि तू बड़े दर्द के साथ अपने बच्चों को पैदा करेगी। तो इस तरह से मनुष्य जो है उस श्राप के अधीन हो गया, और वो श्राप अब तक मनुष्य पे चला आ रहा है, हम पर चला आ रहा है। और चौथा पॉइंट है, शैतान परमेश्वर का शत्रु बन गया। और यहाँ से क्या, वो पहले से ही परमेश्वर का शत्रु था। जब वो वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर ने उसको बनाया था, और हर महंगी चीज़, हर महंगा गहना और हर सिंहासन उसको दिया था जो कि वहाँ पर था
उससे तो नीचा था, लेकिन उसको हर तरह की सहूलियत परमेश्वर ने दी थी। और अब जो है परमेश्वर का यही शैतान शत्रु बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको उसके घमंड के कारण नीचे गिरा देता है और इस दुनिया में भेज देता है। और इस दुनिया में आने के बाद वो क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध सारे काम करने लगता है और परमेश्वर के लोगों को वो भड़काने लगता है। और पांचवा पॉइंट है, मनुष्य पृथ्वी पर अकेले हो गया। परमेश्वर ने कहा तुम जो मर्जी करो। अब परमेश्वर इतना परेशान हो गया था कि उसने कहा आदम और हव्वा को कि तुम्हें जो मर्जी तुम करो, अब मैं तुमको नहीं रोकने वाला हूँ। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से तंग आ जाते हैं, माँ बाप बच्चे उनको बहुत परेशान करते हैं, हर दिन उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, उनकी इच्छा के विपरीत जाते हैं, तो माँ बाप भी कहते हैं कि जो मर्जी तुम करो, अब इसका जो बदला है वो तुम ही भुगतोगे। तो इस तरह से परमेश्वर भी जो है वो परेशान हो गया। उसने कहा कि तुम जो मर्जी करो, और मनुष्य जो है वो अकेला रह गया। छठा पॉइंट है कि आदम से उसके पाप का बीज जो है वो फैल गया। अब सबसे पहला बीज जो है आदम में पाप का आया, क्योंकि उसने पाप किया था। फिर उससे जितनी भी जनरेशन निकली उन सब के अंदर आदम का बीज आया, और वो जो था पाप का बीज था। और इस तरह से हर मनुष्य, इवन दो वो पैदा भी नहीं हुआ था, तभी से वो पापी कहलाया। तभी रोमन्स में लिखा हुआ है कि हर एक ने पाप किया है और कोई भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। तो हम कहते हैं छोटे बच्चे ने क्या पाप किया है, वो तो उसने तो दुनिया भी अभी नहीं देखी है। लेकिन ये एक तरीका है कि गॉड ने ये श्राप दिया था कि जो आदम से जो पाप का बीज पड़ा है वो हर एक जनरेशन में उस पाप का बीज आ जाएगा, और हर एक मनुष्य जो है वो पाप की दुनिया में पैदा होगा और पापी कहलाएगा। तो ऐसा रोमन्स 3:23 में लिखा हुआ है। अगर हम जेनेसिस में देखें 6:5-6 में, जेनेसिस 6:5 वर्स कह सकते हैं और पार्ट ऑफ 6 वर्स, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तो देखिए कैसा परमेश्वर को कितना दुख हुआ कि उसने मनुष्य को कितने प्यार से बनाया था, अपने हाथों से उसकी रचना की थी, अपने श्वास को उसके नथनों में फूंका था, और वही मनुष्य जो है उसने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया। इसी तरह से हमारे माँ बाप जब वो हमें कुछ अच्छा बताते हैं, हम उनकी आज्ञा को तोड़ देते हैं, तो वो कितने ज़्यादा दुखी होते हैं, और वो सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे को हमने इतना प्यार दिया, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें दी, फिर भी इसने हमारी आज्ञा को तोड़ दिया है। तो इसी तरह परमेश्वर भी बहुत दुखी हुआ जब आदम और हव्वा ने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, और दिन ब दिन पाप जो है बढ़ता चला गया। और आपने देखा कि जो आदम की संतान केन, लास्ट टाइम जेलेसी में देखा था कि केन ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी, क्योंकि वो उससे जेलस था और जेलसी में उसने उसकी हत्या की। तो इस तरह से पाप जो है बढ़ता चला गया, और सारी दुनिया में पाप जो है वो फैल गया। और इससे क्या हुआ कि परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, और उसने देखा कि उसका मन एकदम टूट गया, और वो पछताने लगा कि मैंने इस दुनिया को क्यों मैंने दुनिया को बनाया। ये अच्छा होता कि मैं दुनिया को ना बनाता। आरती छत्री जी, हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसी तरह से हम देखते हैं 2 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1 में क्या लिखा है। सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपना शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो यहाँ 2 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1 में पौलुस कहता है कि आओ हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को रखें और अपने शरीर और अपनी आत्मा की गंदगी को साफ करें। और उसका रास्ता भी परमेश्वर ने हमें दे दिया है। अपने
ओनली बेटे, अपने सिर्फ एक बेटा जो उसका प्रभु यीशु मसीह है, उसको इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमारे लिए दुख उठाए, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए कोड़े खाए और हमारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए अपना लहू बहाए। इसलिए परमेश्वर ने उसको भेजा इस दुनिया में। तो कितना अमूल्य रक्त हमारे यीशु मसीह का बहा ताकि हम पापों से मुक्ति पा जाएं। फिर रेवलेशन 3:16 में लिखा हुआ है कि ना तुम गुनगुने हो और ना ठंडे हो और ना गरम, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तुम ना तो ठंडे हो ना तो गरम हो और ना जो तुम हो गुनगुने हो, इसलिए मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं तुमको अपनी निगरानी में नहीं रखूँगा, क्योंकि तुम जो हो वो परमेश्वर को बहुत अधिक प्यार नहीं करते हो, गहरा प्यार परमेश्वर को नहीं करते हो, इसलिए मैं क्या हूँ, तुमको अपने मुंह से उगलने पर हूँ। और जब परमेश्वर अपने मुख से हमें उगल देगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। हम जो हैं वो नरक की आग में हमेशा के लिए झुलसते रहेंगे। और 2 पीटर 2:22 में लिखा हुआ है कि एक कुत्ता उसकी छान की ओर और धोई हुई सुअरनी जो है कीचड़ की ओर लौटने को फिर चली जाती है। मतलब जो पापी लोग हैं, जो बहुत जघन्य पापों में फंस चुके हैं, उनको अगर पापों से निकाल भी दिया जाए तो वो क्या होता है, वो फिर से दोबारा उस पाप में चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि एक बार जब हम धुल के साफ होकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ हो जाते, पाक हो जाते हैं, तो हमको उस पाप के गड्ढे में दोबारा नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज कितने बार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहेगा हमें पवित्र करने के लिए। और सिन अकर्ड 6000 years ago, और ये जब दुनिया बनी थी, जब एडम एंड ईव बने थे, तो वो समय था 6000 years ago, 6000 वर्ष पहले जो मनुष्य ने पाप किया था। 6000 वर्ष जो है बहुत बहुत बड़ा काल होता है, और इसी 6000 वर्ष पहले मनुष्य ने पाप किया था। इसलिए पाप के द्वारा मृत्यु आई और सब मनुष्यों के बीच में फैल गई। तो पाप के द्वारा ही मृत्यु क्या हुआ, हमारे बीच में आई और सारे जगह फैल गई। अब मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि इन पापों का फल क्या होता है हमें पता होना चाहिए। इन पापों का फल बहुत ही बुरा होता है। अगर हम दुनिया में हैं तो हम पाप करते हैं, हम पापी हैं, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि हर एक मनुष्य पापी है, और जो ये कहता है मैं पापी नहीं हूँ तो वो झूठ बोलता है। तो इन पापों के कारण जो है हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक नहीं होते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उसने जो लोग परमेश्वर को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने ला के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और यीशु मसीह को अपना लेते हैं, पछतावा करने के बाद उसको अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं और उसके बाद पाप नहीं करते हैं, तो वो लोग जो हैं स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं, वो लोग स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन जो अपने पापों को नहीं छोड़ते हैं और वो जो है यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, तो वो स्वर्ग में ना जाके कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। और ये बात तो सभी धर्मों के लोग जानते हैं कि देयर आर 2 places, द हेवन एंड द हेल। तो हेवन एंड हेल, आइदर पर्सन हेवन में जाता है या हेल में जाता है। और हेल का आज ही मैं एक गवाही एक लेप्चा नाम की लेडी की पढ़ रही थी, और उस गवाही में उसने बताया है कि उसने क्या किया, स्वर्ग और नरक को देखा है, और वो परमेश्वर की बहुत ही मानी हुई बेटी थी, और वो जो है उसने परमेश्वर को अपनाया था, यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे वो चलती थी, और परमेश्वर उसको बहुत बहुतायत से लोगों के बीच में
प्रचार करने के लिए भेज रहा था। और एक बार ये लेडी क्या है एकदम गूंगी हो जाती है और परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो हो 3 दिन के लिए बिल्कुल गूंगी रहोगी और तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगी। और इस बीच में परमेश्वर उसको स्वर्ग और नरक की सैर कराने ले जाते हैं। तो वो देखती है कि जो नरक में लोग जो हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ही बड़ी आग जल रही है और ज्वाला धधक रही है, और उसमें लोग जो हैं जल रहे हैं, उनके शरीर पर कीड़े हैं। अब ये शरीर तो वो शरीर नहीं होगा जो मिट्टी में दबा दिया गया। ये शरीर जो है कोई अनोखा या कोई फर्क शरीर होता है जिसमें से कीड़े बह रहे हैं, कीड़े उनको काट रहे हैं और वहाँ से लहू बह रहा है, और ये लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वो परमेश्वर से पूछती है कि ये लोग कौन हैं। तो परमेश्वर उनसे कहते हैं कि ये लोग वो हैं जिन्होंने संसार में रह के बहुत ज़्यादा अपने पर घमंड किया है। और फिर वो दूसरे तरफ परमेश्वर उसको ले जाते हैं, और वहाँ पर भी लोग जो हैं वो बहुत उनके सिर में कीड़े फंसे हुए हैं और उनको नोच रहे हैं और उनके सिर से खून बह रहा है। तो वो पूछती ये लोग कौन हैं। तो वो परमेश्वर कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में रहकर कभी भी किसी का अच्छा नहीं किया, और ये लोग स्वार्थी हुए और ये हमेशा दूसरों का बुरा ही करते रहे। और उसके बाद वो उसको एक और जगह ले जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा होता है, और उस गड्ढे में वो मनुष्य जो हैं जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं जो कि पास्टर्स थे, जो कि बिशप थे और पादरी थे, वो लोग जा रहे थे। तो वो कहती, उसमें से एक पास्टर को ये लेडी जो है लेप्चा वो जानती भी थी, उसने देखा भी था। तो वो कहती है, परमेश्वर से पूछती है कि ये लोग क्यों यहाँ जा रहे हैं, ये तो पास्टर हैं, पादरी हैं। तो परमेश्वर कहते हैं ये लोग पास्टर तो हैं, इन्होंने मुझे अपनाया भी था, लेकिन ये लालच में पड़ गए, और ये लोग मेरे धर्म का प्रचार इसलिए करते थे कि इनको पैसे मिलें और ये बहुत अमीर बन जाएं। इन्होंने दुनिया में बहुत आनंद उठाया है और बहुत पैसे कमाए हैं मेरे नाम से, इसलिए इनको ये सज़ा मिली है कि यहाँ पर वो स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो लेप्चा है ये सोचती है देखो परमेश्वर के लोग भी नरक में आ सकते हैं। फिर उनको वो स्वर्ग में ले जाते हैं प्रभु, और उनको दिखाते हैं कि स्वर्ग में जो सारे लोग कितने शांति पूर्वक हैं। वो लोग जो है सफ़ेद बिल्कुल श्वेत बर्फ़ की नाई हैं और वो चमक रहे हैं, और उनके पर सितारे हैं और उनके पर जो सितारों का मुकुट रखा हुआ है, और वो सब परमेश्वर की हमदो सिताइश कर रहे हैं। तो ये पूछती है ये लोग कौन हैं। तो परमेश्वर कहते हैं ये वे लोग हैं जो कि मुझे जानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन काल में ग्रहण किया है, जिन्होंने अपने पापों की माफ़ी मांगी है और प्रभु ने इनको माफ़ कर दिया है। तो ये लेडी जो है बहुत विचलित हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। फिर जब ये अपने होश में आती है तो उसको परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और दुनिया में ये सारी बातें बताओ। तो ये सबको जब इसकी बोली वापस आ जाती है तो ये सबको ये सारी बातें बताती है, और यही इसीलिए परमेश्वर ने उसको नरक और स्वर्ग का भ्रमण कराया था कि वो इसके बारे में लोगों को बताए। तो बहुत सी आत्माएं जो हैं वो बच जाती हैं, और जो फिर भी ढीठ होते हैं और फिर भी बचना नहीं चाहते हैं वो जो है वो अपने पापों में डूबे ही रहे। तो इसलिए हम स्वर्ग और नरक को हल्का ना लें कि लोग जो हैं स्वर्ग और नरक कहते हैं, ये तो ऐसे ही है, किसने देखा है स्वर्ग को, किसने देखा नरक को, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार और दूसरे धर्म शास्त्रों के अनुसार भी स्वर्ग और नरक होते हैं, और उसमें जो स्वर्ग है वो बहुत ही सुंदर है और नरक जो है वो बहुत ही भयावह है। और वहाँ जो मृत्यु होती है परमेश्वर के सामने, वो शैतान के सामने, वो जो है बहुत ही कीड़े उनको खा लेते हैं और वो लोग तिल तिल कर मरते हैं, और शैतान जो है उसका अधिकारी होता है, और वो जो है और भी ज़्यादा यातनाएं उनको देता है।
सो मेरे प्रियो, क्या आप ऐसी वाली आग में जलना पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आप नरक में जाएं, जहां पर कि वो व्यक्ति जो अमीर था, वो एक 2 बूंद पानी के लिए तरस जाता है, जो इब्राहिम से कहता है कि लाजर को मेरे पास भेज ताकि ये उंगली पानी में डुबो के मेरी जीभ पर रखे। इतना वो प्यासा होता है। लेकिन उनको इब्राहिम क्या कहते हैं कि जब तू दुनिया में था तब तूने बहुत सुख झेल लिए, और अब तुझे इसी नरक में रहना पड़ेगा, और अब कोई भी तुझे पानी देने नहीं आएगा। तो इस तरह से मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हशर ऐसा हो, या हमारे हमारे रिश्तेदारों का, हमारे फ्रेंड्स का हशर ऐसे हो, और हम जो है नरक की आग में उनको देखें, और हम अपने आप पर भी घमंड ना करें, क्योंकि हम आज जो भी हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। अगर हम बच गए हैं, अगर हम विश्वासी हैं, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। इसमें हमारी कोई अच्छाई नहीं है जिससे कि हम जो है उसके बच्चे कहलाते हैं, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमको अपने बच्चे होने का दान दिया है। सो अभिनी जी कहती हैं, लेट्स रिपेंट एंड टर्न टू गॉड बिफोर इट्स टू लेट, मे गॉड हेल्प अस ऑल। यस, हमें नहीं पता, पानी जो लाइफ है वो पानी का एक बुलबुला है। लाइफ एक वेपर के समान है, वो जो है भाप के समान है, और एक बादल के समान है जो कब हट जाएगी हमें नहीं पता। सो मेरे प्रियो, हमें हर क्षण हर पल अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हमको एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद हो, और जो हमको इस लायक बनाए कि हम स्वर्ग के लोक में रह सकें। और फ्रीडम फ्रॉम सिन, जैसे कि आदम ने पाप किया, और वो आदम क्या हुआ, स्पिरिचुअल क्रिमिनल कहलाया जाता है। स्पिरिचुअल आत्मिक अपराधी उसको माना जाता है। उसी तरह से जब हम आदम को मानते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे, मतलब उसके तरह पाप करते हैं, तो हम भी स्पिरिचुअल क्रिमिनल्स कहलाते हैं। गलेशियन 5:13 में लिखा हुआ है, भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बनाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो हमने अभी तक देखा कि पाप क्या है, और पाप जो है वो कैसे हमारे शरीर में आया, और पाप से मनुष्य कितना ज़्यादा पापों में पड़ के कितनी सजाओं को उसने भुगतने का जो भार है अपने ऊपर ले लिया, और जिन्होंने पाप करके प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांग ली, उनको स्वर्ग में रहने का अधिकार मिला। अब हम ये सोच रहे होंगे कि इन पापों से रिहाई हम कैसे पाएं, इन पापों से हम दूर कैसे हों। तो इन पापों से दूर होने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हम स्वतंत्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को माने, और उसके सामने आके हम गिड़गिड़ाएं और अपने पापों की उससे क्षमा मांगे। और प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, इतना ज़्यादा दीन है कि वो हमको माफ़ करेगा। उसने कभी किसी को वापस खाली हाथ नहीं भेजा। जो भी उसके सामने आता है, अपने पापों की माफ़ी मांगता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको माफ़ कर देता है। इवन उसने क्रूस पर से कहा, जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, उस पर थूका था, उस पर कांटों का ताज पहनाया था, उसको कोड़ों से मारा था, उन लोगों के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का यही गुण जो है वो लोगों के मनों को छू जाता है। कई लोग जो हमारे प्रभु को नहीं जानते हैं, वो इस गुण को जान के प्रभु के कायल हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने लगते हैं कि वो इतने ज़्यादा यातनाएं सह के भी उन लोगों के लिए माफ़ी मांग रहा है परमेश्वर से कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि उसने अपनी जान सूली पे दी, इसीलिए दी कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं, हमारे श्राप क्षमा हो जाएं। वो खुद निष्पाप था, लेकिन वो पाप हमारे लिए बन गया। वो क्रूस पर चढ़ा और एक पाप बना हमारे लिए, और उसको बड़े डिफरेंट तरीके से उसके कीलें गाड़ी गई, जिससे जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जिससे खून जो है वो बहता रहता है। और लास्ट में जब उसको बर्छी मारी जाती है, तो उसके छाती में से
क्या पानी निकलता है, दैट मीन्स उसके खून का कतरा कतरा जो है वो बह गया था। और आप सोच सकते हैं कि उसके बदन में एक बूंद भी खून नहीं बचा था। और वो खून जो है वो हमारी नजात के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए बहा। और उस खून के नीचे हम अपने आप को धोकर साफ कर लें और अपने आप को श्वेत कर लें, ताकि हम परमेश्वर के राज में शामिल हो सकें। और रोमन्स 8:1-3 में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होके ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने शरीर में पाप किया है, तो इसलिए उसने अपने बेटे को शरीर में इस दुनिया में भेजा, ताकि शरीर में वो सबके पापों को अपने ऊपर ले ले और मनुष्यों के पाप क्षमा हो जाएं। तो कितना महान है हमारा पिता, कितना महान है हमारा परमेश्वर, जिसने हमारे बारे में सोचा, जबकि हम कुछ भी नहीं है, जबकि हम पापी हैं, जबकि हम रैचेड सिनर्स हैं, पर गॉड ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और उसने शरीर में यातनाएं सही। और ये जो है बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और जिसको अगर हम नहीं मानते हैं तो हम बहुत बड़े पापी हैं। और हिब्रियों में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी जंतु का सैक्रिफाइस, किसी भी जानवर का, चिड़िया का सैक्रिफाइस हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता है। और हर साल लोग जो हैं सैक्रिफाइस बलि चढ़ाते थे, लेकिन उससे सिर्फ 1 साल का पाप ही जो है क्षमा किया जाता था। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दूं और उसके बलि होने से हमेशा हमेशा के लिए पाप से क्षमा मिल जाए। तो आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उसके सामने अपने पापों की माफ़ी मांगे और उसके बलिदान को हम तुच्छ न जाने, बल्कि एक महान बलिदान समझें और अपने पापों की क्षमा मांग के उससे कहें, हे प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे पाक और साफ कर, और ताकि मैं आपके राज्य में प्रवेश कर सकूं। हे प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें बचा लिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मिलियंस ऑफ पीपल में से हमें चुन लिया है। बुलाए तो बहुत गए हैं, पर चुने हुए लोग बहुत कम हैं। सो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको चुन लिया है और आपने हमको अपने पापों की कीच से निकाल कर दूर कर दिया है। हे प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। और पवित्र आत्मा इस सेशन के लिए हमें लीड करने के लिए आपका धन्यवाद हो। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो और वो सब सारे लोग जो हैं परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकें। और नाउ हम छोटी सी दुआ करेंगे इसके पहले कि हम समाप्त करें। Dear gracious, loving Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord, for your great sacrifice that you gave your only begotten Son, so he could die for us, he could become a sacrifice for us, so we may be freed from our sins and we may be freed from the fire of the hell, and we may enter into the kingdom of heaven. Dear Heavenly Father, what a great love you have shown us, and there is wonderful power in your blood, dear Father, and you died for our sins, dear Lord. Thank you so much. Thank you from the depth of our hearts. Thank you, dear Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, Jesus. And now I pray for all the people who have heard this message on the page, those who are, bless them, and from behind who they are watching, Lord bless them also. And I ask for your special blessings on Shabnam ji and brother, that they are chosen by you for the extension of thy kingdom. Dear Heavenly Father, keep them in good health always and use them mightily for the extension of thy kingdom. Bless their families, dear Father, and bless this page, Agra Masihi Mandli. Dear Heavenly Father, I pray for
Shabnam ji, I pray for Anupam ji, I pray for Vinny Ajay, I pray for Rohini ji, and I pray for Arati Chetri, or those whom I couldn't see. I pray for each one of them. Lord, bless each one immensely. And now I ask this prayer in the most precious name of our Lord Jesus Christ. And I pray for my granddaughter Prarthana also, who's sitting and listening to this message. Dear Heavenly Father, bless her also, help her in her studies. For all this I ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. So आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आपको बहुत आशीष दे. God bless you, and till we meet again on Saturday at 9 p.m. again. Okay, bye. Good night.